welcome back to my channel. So if you had still not subscribed my channel, first of all go and subscribe my channel and don't forget to click the bell icon to get all the notifications of my upcoming videos. So without wasting any time, let's get started towards the video. So guys, first of all, basically this video is all about my smoothing treatment, and as I have promised you all that in my first video, I think first or second video, इसके पहले भी दो स्मूथनिंग के वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, so you can go and check it out on my page. So this video is also about smoothing treatment which was done on September 1st week, and I have promised you all that I'm gonna share my personal experience of smoothing after the 3 months, and almost I have completed my 3 months of smoothing. So here are the things which I'm gonna share with you all. So I think and I hope this video will be helpful for you. So yeah, so in this video I'm gonna share each and everything which I used to face with my smoothing hair and my so first of all guys, जो कि मैं सबसे ज़्यादा मैं परेशान थी, that was my pokey hairs, जो कि उतने ज़्यादा पोकी अब नहीं हैं. So finally 1 point for the smoothing, because स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जस्ट आफ्टर द स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कुछ दिन तक मुझे अच्छा लगता था यार, स्ट्रेट हो गए हैं, स्मूथ हैं, बट इतने ज़्यादा पोकी आप एक ही हेयर स्टाइल हमेशा नहीं रख सकते, राइट? You can't carry same hairstyle for every dress up and every function, same hairstyle, the same straight hair with the same look, because hairstyle is a thing जो आपका पूरा मेकअप एंड पूरा मेकओवर चेंज कर सकती है, राइट? सो बेसिकली I was literally fed up of that pokey hair straight, but हाँ ऐसा नहीं है, अभी वो पोकीनेस जा चुकी है. Still my hair are straight but not that much pokey straight. So I will give 1 point for the smoothing for this. Then again, जो बॉन्सीनेस मैंने आपको बताया था, वो बॉन्सीनेस मेरे बालों से जा चुकी थी, बट एज 3 months आई हैव कम्प्लीटेड 3 months ऑफ माई स्मूथनिंग. तो इसमें क्या हुआ है, जो न्यू ग्रोथ आई है मेरे बालों की, दे आर क्रिएटिंग अगेन बॉन्सीनेस ऑन माई हेयर्स. दैट्स आई एम आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज मुझे इतने ज़्यादा चंपू वाली फीलिंग आ रही थी आफ्टर द स्मूथनिंग, दैट मेरे बाल गायब हो चुके हैं. हेयर के जो मतलब बहुत ही आई कांट एक्सप्लेन माई हेयर्स हाउ आई यूज टू फील लाइक कि मेरे बाल जा चुके हैं, नथिंग इज लेफ्ट ओवर. So yeah, again I'm loving that bounciness on my hands. As you can see that कि bounciness आ रही है, so thank God for that. So again, let's talk about the season and weather. So it's super cold here, जो कि ठंडियाँ अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी है. ठंडियों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत होती है. सो ऑयलिंग नहीं कर सकते आप ज़्यादा. 3 months के बाद ऑयलिंग आपको प्रेफर किया जाता है, बट मुझे ईचीनेस प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, बिकॉज मेरा स्कैल्प आई थिंक ऑलरेडी ड्राई था. मैं ऑयलिंग वीक में 2 बार करती थी. सो मुझे उस चीज़ की हैबिट थी. Yeah, that was a part of my routine, so I have skipped that routine. So मेरे बालों में ड्राइनेस बहुत हो चुकी थी, and I used to face the dandruff problem, because मुझे आज तक कभी dandruff problem नहीं हुई है. So I used to face that too. So मैंने start किया था. Then I have asked the professional hairstylist who has done my smoothing. I called him and I told that I'm facing the itchiness problem and dandruff all around my scalp area, and this is not common for me, because I have never faced a dandruff problem in my entire still life. So I used to hate that problem, and itchiness problem was so irritating for me. So I had asked him, उसने मुझे बोला कि आप थोड़ा सा ऑयल को हल्का सा हीट करके आप उसको मसाज पे अप्लाई करना, बट डोंट अप्लाई ऑन योर हेयर्स. सो मैंने
फर्स्ट ऑयलिंग अपनी 1 महीने के अंदर ही कर ली थी। एंड ट्रस्ट में कुछ नहीं होता है, सब बोलने की बातें हैं कि आप ऑयलिंग नहीं कर सकते एंड कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने 1 महीने के अंदर ऑयलिंग कर ली थी। मैंने अपने बालों पे अच्छे से मसाज किया था। या एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा था दैट मैंने सिर्फ मसाज स्कैल्प पे किया था, नॉट ऑल ओवर माई हेयर्स। एंड ये मेरा जो ये रूट एरिया था, आई यूज टू अप्लाई ऑल ओवर हेयर, दैट्स इट। नो, मैं इस एयर सेक्शन को हमेशा छोड़ देती थी, जो मैं स्कैल्प पे अप्लाई करती थी, एंड द ट्रू टिप एरिया, दैट्स ऑल्सो। हाँ, पहले मैंने जब स्टार्टिंग में ऑयलिंग करना स्टार्ट किया, आई यूज टू हैव ऑयलिंग 10 to 15 डेज वंस, बट अब मैंने धीरे धीरे उसको हफ्ते में एक बार कन्वर्ट कर लिया है। मैं हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करती हूँ, और मुझे एज पर माई एक्सपर्ट ही रिकमेंडेड मी ऑयल मैं शावर के 1 घंटे पहले, उसने बोला मैम शावर के 1 घंटे पहले ऑयलिंग कर लेना, देन यू जस्ट वॉश इट ऑफ। बट मैं रात को ऑयलिंग करके सो जाती हूँ, एंड मैं सुबह हेयर वॉश करती हूँ। मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है, बिकॉज मुझे वैसे भी बॉन्सी हेयर पसंद है। तो मैंने पूरी कोशिश करी थी स्टार्टिंग में कि मेरी स्मूथनिंग ख़राब हो जाए, मेरे बाल कुछ तो बॉन्सीनेस आए मेरे बालों में। और मुझे शायद 3 महीने हो गए मैंने पोनी टेल नहीं बांधी, बिकॉज आई लव पोनीज। एंड मैं पोनी के बाद बहुत ही, मुझे अपना लुक ही बहुत गंदा लगने लगता था। तो 3 महीनों से मेरी हेयर स्टाइल जो भी है ओपन हेयर स्टाइल ही है। जस्ट आई यूज टू डू दिस। यह 3 महीने से मेरी सिग्नेचर हेयर स्टाइल बन चुकी है। सो अगेन कमिंग बैक टू द स्प्लिट एंड्स। सो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको स्प्लिट एंड्स वैसे ही होने वाले हैं जैसे पहले होते थे। सिर्फ फ़र्क इतना है, दे विल जस्ट ब्रेक इट ऑफ जहाँ से भी वो स्प्लिट एंड्स हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगेन, हेयर मास्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड द हेयर सीरम। सो स्मूथनिंग, इन दोनों के बिना आपके बाल ख़राब होने वाले हैं। सो आपका जो भी है, आप शैम्पू जिस भी प्रोडक्ट का आपने करवाया है, वेला, सॉचकॉफ और लॉरियल, वॉट एवर इट मे बी, इट्स अप टू यू। सो मेरा तो सॉचकॉफ था, एज यू ऑल ऑफ नो दैट। सो मैंने उसी का हेयर मास्क अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। बट मैं ये देखती थी कि अगर 2 दिन हो गए शैम्पू किए हुए और मैं अगर बाल खोल के कहीं भी घूम कर आ रही हूँ, मुझे इतने एरिया में अलग से ही समझ में आता था हेयर ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स, वॉट एवर यू से, इतने एरिया मुझे हमेशा अपने ड्राई लगते थे। तो ये मेरा रूटीन बन चुका है कि मुझे हर 2 दिन में मैं इतने एरिया को पानी में से डिप करके आई अप्लाई मास्क ऑल ओवर दिस एरिया ऑफ माई हेयर, और मैं इसमें सीरम लगाती हूँ, तभी ये एरिया अच्छे लगते हैं। वरना अगर आप बहुत ही ज़्यादा नोटिस करेंगे तो आपको हमेशा इसमें स्प्लिट एंड्स ही समझ में आने वाले हैं। बाकी उसके अलावा इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो या 3 महीने हो गए हैं, और जो मेरी हेयर न्यू ग्रोथ आई है वो मुझे समझ में आ रही है। बिकॉज फॉर स्मूथनिंग मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे ये लगता था स्प्लिट एंड से मेरे बाल बढ़ते भी है नहीं, बट नाउ आई कैन सी द डिफरेंस। या थोड़ा अच्छा लुक आता है, क्लासी। एंड अभी मैंने कुछ इवेंट्स अटेंड किए थे, आई मीन घर की शादियाँ थी, बट मैंने ये देखा कि मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं कर पा रही हूँ बिना प्रोफेशनल हेल्प के। मतलब मैंने बन बनाया था, वो बन आधे घंटे से ऊपर नहीं चला था मेरा, पूरा बन मेरा खुल चुका था वेन्यू पे पहुँचते पहुँचते। सो दैट वाज आल्सो सो अनोइंग। देन ओके, मैंने समझ चुकी हूँ बिना प्रोफेशनल हेल्प के आप स्मूथनिंग के बाद कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकते। आपको अगर स्मूथनिंग के बाद कोई भी हेयर स्टाइल करनी है, देन एक दिन मैंने कर्ल्स करने की घर पे कोशिश करी थी कि मे बी अच्छे से हो जाए। मुझे हल्का वॉल्यूम चाहिए था अपने बालों में, मुझे इतना कर्ल भी नहीं करना था। आई जस्ट वॉन्ट सम बॉन्सीनेस, जिसके लिए मैं वो बेबी हेयर करना चाहती थी। सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटनर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राइड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटनर। ट्रस्ट मी, मेरे बाल और गंदे लगने लगे। ना वो स्ट्रेट ही थे, ना वो वेवी ही थे, ना वो कर्ली थे, पता नहीं क्या ही हो चुके थे। देन अगले दिन मैंने फिर से विद द हेल्प ऑफ हेयर
कर्लर मैंने ट्राई किया, देन उसमें भी वो रोल्स नहीं बने थे, वैसे कर्ल्स नहीं हुए थे जैसा मैं चाह रही थी। सो मैंने डिसाइड किया कि इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। सो आई हैव डिसाइडेड कुछ नहीं करना है और भी बाल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने जस्ट बाल धुले एंड आई वॉज रेडी फॉर माई इवेंट। So yeah, this was all my review of my smoothing. So hope this video was helpful for you. अगर आपको ये वीडियो सच में थोड़ी भी बेनिफिशियल लगी है then please share my video and yeah, don't forget to subscribe my channel and click the bell icon and yeah, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और जल्दी से जाके वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लड़कियां जो इस स्मूथनिंग के लिए बहुत कंफ्यूज्ड हैं उनको ये वीडियो मिले। सो सी यू, टाटा, बाय बाय।